Good morning, students. In this lecture, we are starting a new chapter of microeconomics, chapter number 11, theory of supply. Theory of supply is just opposite of theory of demand. In the what is supply? For example, it is asked from the producer A, how much quantity of a commodity you are ready to sell. Then he said, I will sell more quantity of a commodity at high prices and less quantity of a commodity at less prices. Means he will sell more quantity if he receive high prices and he will sell less quantity if he receive less prices. Then why? That's because of earning profit. From this, we can say the meaning of supply. Supply of a commodity refers to a table or schedule that shows the different quantity of a commodity that the producer are ready to sell at different possible prices. कि वो एक ऐसी टेबल जो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को शो करती है जिसे प्रोड्यूसर रेडी है सेल करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर. In short, supply of a commodity refers to a schedule or table that shows the different quantity of a commodity that the producer are ready to sell at different possible prices of that commodity. Now, stock and supply. What is stock and supply? There are a lot of difference between stock and supply. First, stock. What is stock? Stock is also called inventory. Stock refers to a commodity that the producer have available of that quantity at a time and also for a future. कि एक ऐसी क्वांटिटी कमोडिटी की जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है अभी के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, बट that the producer are not ready to sell at present, कि जिसे प्रोड्यूसर एट प्रेजेंट सेल करने के लिए रेडी नहीं है. वाई? बिकॉज क्या पता कि जो प्राइस अभी उसको मिल रहा है उस प्राइस पर प्रोड्यूसर उसे सेल करने के लिए रेडी ना हो. सो stock is just an inventory. But what is supply? Supply refers to a commodity refers to a table or schedule that the producer are ready to sell at present at availing price. मीन जो प्राइस उसको मिल रहा है उस प्राइस पर सेल करने के लिए वो रेडी है. फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग 1000 टन ऑफ वीट्स एट प्रेजेंट. उसके पास 1000 टन है वीट के प्रोड्यूस कर रहा है एट प्रेजेंट, but he is not ready to sell 1000 wheat, and he is ready to sell 500 ton of wheat at present at available prices. Means उसके पास स्टॉक तो 10,000 टन का पड़ा है लेकिन वो सप्लाई कितने की रेडी सप्लाई के लिए कितने के लिए रेडी है? 500 टन के लिए. दैट इज सप्लाई. नाउ, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. Supply refers to a different quantity of a commodity that the producer are ready to sell at different possible prices, but stock refer to the total quantity that is available with the producer at for present and for future sale, कि जो उसके पास present के लिए भी है और future sale के लिए भी है. Next, supply is the flow concept. It is measured per unit at a time period. Flow concept means supply means movement की फ्लो, जो सप्लाई चलती रहती है. बट स्टॉक क्या है? स्टॉक में तो कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फ्लो नहीं हो रहा, स्टॉक उसके पास पड़ा है एज अ इन्वेंट्री. तो स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट. थर्ड पॉइंट, सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. सप्लाई का ऑलवेज प्राइस के साथ रिलेशन रहता है कि प्राइस हाई होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी एंड सप्लाई लो होंगे, प्राइस लो होंगे तो सप्लाई लो होगी. सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड prices, but there is no relation between stock and prices. stock का प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है कि कितने प्राइस मिल रहे हैं. स्टॉक तो एज अ इन्वेंट्री उसके पास, प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है. दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. नेक्स्ट, सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट सप्लाई schedule. What is supply schedule? Supply schedule or supply both are same. So what is supply schedule? Supply schedule refers to the schedule or table that shows the different quantity that the producer are ready to sell at different possible prices of that commodity. So both are same. Now
types of supply schedule. There are two types or two aspects of supply schedule. First, individual supply schedule. Second, market supply schedule. So first of all, what is individual supply schedule? Individual means a single firm. कि जब एक सिंगल फर्म की बात होती है तो दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. जब पूरी मार्केट की मीन्स सभी फर्म्स की, ऑल फर्म्स की बात होती है, दैट इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. What is individual supply schedule? Individual supply schedule refers to the supply schedule of an individual firm or a single firm that are ready to sell different quantity of a commodity at different possible prices. कि एक सिंगल फर्म कितनी क्वांटिटी को कितने पॉसिबल प्राइसेस पर सेल करने के लिए रेडी है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. फॉर एग्जाम्पल, फर्म ए, एक फर्म ए है जो प्राइस एक्स शो द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई. जब प्राइस 10 थे तो वो 20 यूनिट सेल कर रही थी. जब 15 थे तो वो 30 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है, सप्लाई करने के लिए. जब 20 रुपीज पर 40 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है एंड 25 पर 50 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है. क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल फर्म की बात हो रही है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. तो व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व? Individual supply schedule refers to a supply schedule that shows the different quantity of a commodity of a single firm or an individual firm that are ready to sell at different possible prices. इसका कर्व कैसे बनाएंगे? अब आती है, ये तो सप्लाई स्केड्यूल की बात थी, ऐसे ही सप्लाई कर्व की बात होती है. व्हाट इज सप्लाई कर्व? व्हाट इज सप्लाई कर्व? Supply curve refers to the graphical representation of the supply schedule. यहाँ हमने टेबल बनाई थी सप्लाई स्केड्यूल में, तो सप्लाई कर्व में क्या करेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे सप्लाई स्केड्यूल की या फिर टेबल की. सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई schedule or table that the producer are ready to sell at different possible prices. So similar like a supply schedule, supply curve has two aspects. First, individual supply curve. Second, market supply curve. First of all, what is individual supply curve? Individual supply curve refers to that supply curve that shows the graphical representation of a single firm or an individual firm that are ready to sell its commodity at different possible prices. तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है? इसी टेबल को हम ग्राफ पर डायग्राम के थ्रू शो करेंगे. हियर आउटपुट और यूनिट डेटा a single firm or an individual firm are ready to supply. Here price of X good. When prices are 10, जब 10 थे prices तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई और थी? 20. मीन्स यहां गई. जब प्राइस 15 थे तो 30 यहां. देन 20 पे कितने थे? जब प्राइस 20 हो गए थे तो 40 यहां कहीं हो जाएगा. देन 25 पर 50 यहां. मीन्स दैट इज मूविंग अपवर्ड. सो सप्लाई स्केड्यूल इज मूविंग अपवर्ड. हमारे डिमांड सप्लाई कैसा होता था? इस तरह से कुछ होता था. दैट इज डिमांड कर्व, but that is supply curve. It is moving upward. So what is individual supply curve? Individual supply curve show the graphical presentation of individual supply schedule. Means that supply that the producer are ready to sell at different possible prices. Next, market supply. First, market supply schedule. What is market supply schedule? Market supply schedule refers to a supply schedule or a table that show the commodity supplied by all firms या फिर whole industry. कि whole firms जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रेडी है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. ये एक पूरी सिंगल फर्म्स की सप्लाई को ना शो करके ये पूरी एक होल फर्म्स की सभी फर्म्स को कंसीडर करता है, उनकी सप्लाई को शो करता है. Some total of whole firms are also called an industry. कि फर्म ए भी है, ए बी सी एंड सो ऑन. जितनी भी फर्म्स है एक कमोडिटी की मार्केट में, उन सभी को
कंसीडर करके ये क्या कहते हैं इसमें इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्री। तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या होती है? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू अ सप्लाई स्केड्यूल दैट शो द सप्लाई ऑफ होल इंडस्ट्री और some total of all firms that are ready to sell its commodity at their commodity at different possible prices in the market. For example, प्राइस जब 10 थे तो फर्म ए 20 यूनिट सेल कर रही थी, बट फर्म बी 25 यूनिट सेल कर रही थी। देन 15 पर ये 30 कर रही थी, बी भी 30 कर रही थी। देन 20 पर ए 40 कर रही थी और बी 45 कर रही थी। जब प्राइस 25 थे तो फर्म ए तो 50 यूनिट सेल करने के लिए रेडी थी, बट फर्म बी 60 यूनिट सेल करने के लिए रेडी थी। मैंने ये एग्जांपल अपनी तरफ से ली है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। आपको ये नीड नहीं है कि आपको बुक वाला सेम एग्जांपल ही कॉपी करना है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। नाउ दैट इज द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, जो एक सिंगल फर्म का शो ना करके उसकी पूरी कंप्लीट फर्म्स, जितने भी फर्म्स मार्केट में अवेलेबल है उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की, उन सभी की सप्लाई को शो करता है। दैट इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अब आती है बात सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व क्या है? व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई स्केड्यूल। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? मार्केट सप्लाई कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट सप्लाई schedule that the whole market or whole firms are ready to sell their commodity at different possible prices. अब इसका स्केड्यूल, इसका कर्व कैसे बनाएंगे मार्केट सप्लाई का? सो सप्लाई ऑफ होल मार्केट मीन्स फर्म ए प्लस बी, इनका टोटल को शो करेगी सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। तो टोटल कितना है? 20 + 25 45 मीन्स जब प्राइस 10 थे तो होल मार्केट कितने प्रोडक्ट, कितने यूनिट सेल कर रही थी? 10 पर 45। देन 15 पर कितने सेल कर रही थी? 60। देन 20 पर कितने सेल कर रही थी? 85। देन 25 पर जब प्राइस 25 थे तो 110 यूनिट सेल कर रही थी। मीन्स कंप्लीट होल फर्म या फिर एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की बात करें या फिर सभी फर्म्स की बात करें तो ये पूरी फर्म्स, कंप्लीट फर्म्स को कंसीडर करती है मार्केट सप्लाई कर्व। अब इनके ग्राफ की बात करें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्म ए, मींस हियर एक्स एक्सिस यू विल कंसीडर यूनिट, एट वाई एक्सिस प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। जब प्राइस इतने थे तो यहां पर इतने यूनिट सेल कर रही थी फर्म ए, दैट इज द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए, एंड दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ firm B, and this is the complete supply curve of firm A plus B, means market supply curve. Market supply curve. This is the supply curve and supply schedule. Now you can do this topic. Thank you.